عقیقہ کے پروگرام رکھا گیا ہے اور بہت سارے علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اور بچوں بھی آئے اور قرآن خوانی بھی کیا گیا اور مفتی صاحب بھی آئے ہیں۔ تو مفتی صاحب سے ہم یہی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ عقیقہ کے فضائل کے بارے میں کچھ بتا دیجیے تاکہ لوگوں کے چینل کے بارے میں جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو پروگرام ہوا اس میں بھی میں نے عرض کیا کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان نعمت ہے، اور دنیا میں جو بھی نعمت ہمیں ملے اس پر شکر گزاری ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو اس نعمت میں ہم اضافہ کریں گے۔ اولاد کی نعمت کا شکرانہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے یہ بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم ایسے دین پر عمل کرتے ہیں جو کمپلیٹ دین ہے، جو کمپلیٹ وے آف لائف ہے۔ تو ایک بچہ جب اس دنیا میں آ رہا ہے تو اس بچے کا ہمیں ویلکم کیسے کرنا ہے، ہاؤ ٹو ویلکم دس نیو بورن بیبی، ہم اس نئے بچے کا ویلکم کیسے کریں۔ ہمارے دین نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ ایک نیا بچہ جب دنیا میں آئے اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے دوسرے کان میں اقامت پڑھی جائے، 7ویں دن اس کا بال منڈایا جائے اور بال کے بقدر چاندی صدقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، اچھا نام رکھا جائے، عقیقہ کیا جائے۔ تو ہمارے دین نے جو ہمیں گائیڈنس دیا ہے، ہمارے دین نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے، اسی کی روشنی میں الحمدللہ آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ عزیزم بلال سلمہ جو کہ اس بچے کے والد ہیں، بچے کا نام محمد ہادی ہے، بڑا خوبصورت نام ہے۔ ہادی یہ اللہ کے رسول کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو ہمیں دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ اس بچے کو صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے، اور اللہ اس بچے کو دین اور دنیا کی ترقی عطا فرمائے۔ اور آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم یہی کہنا چاہیں گے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دین کی گائیڈنس اور رہنمائی کیا ہے، اور زندگی کے ہر مسئلے میں اپنے دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ اسی میں انشاءاللہ ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ بس یہی میسج میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں عقیقہ یہ کیا ہے؟ عقیقہ فرض ہے، کیا ہے؟ عقیقہ کرنا یہ ایک بہتر عمل ہے، مسنون عمل ہے۔ کوئی لڑکا اگر ہو تو اس موقع پر جو ہے کم سے کم 2 چھوٹا جانور جو ہے ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت جو ہے تقسیم کیا جائے، خود بھی استعمال کیا جائے۔ تو یہ ہمارے دین کا ایک بہت ہی بنیادی عمل ہے اور اس کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس مکھی ادیش ہوتا ہے جیسے عقیقہ کا، تو اس میں تو جیسے جو بھی ان کے نام سے جو قربانی کیا جاتا ہے، جیسے بول دیجیے ہے نا، جی تو ان کا گوشت بانٹا جاتا ہے۔ ہاں، اس کا گوشت آپ بانٹ بھی سکتے ہیں، اس کا گوشت گھر کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیقے کا گوشت باپ نہ کھائے، ماں نہ کھائیں، دادا دادی نہ کھائیں، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ عقیقے کا جو بھی گوشت ہے اس کو گھر کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس موقع پر ہمیں اپنے آس پاس پڑوس کے غربا اور مساکین کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور صرف عقیقہ نہیں بلکہ کسی بھی طرح کی دعوت ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا ولیمے کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، کسی اور مناسبت سے بھی ہم دعوت کر رہے ہیں، غربا مساکین کو کبھی نہ بھولا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ بدترین دعوت ہے جس میں غربا اور مساکین کو نظر انداز کیا جائے۔ جی، اور جیسے اور بھی سوال بھی آتا ہے تو کرتے ہیں لوگ کہ جو بال جو منڈن جو بچہ کیا جاتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ جو بال جو چھلانے کے بعد ہاں، جو بال ہے اس بال کو سب سے پہلے آپ وزن کریں گے، وہ جتنا بھی وزن ہوگا اس کے بقدر چاندی، جیسے مان کے چلیے عام طور سے بچوں کے بال کا جو وزن ہوتا ہے 4 گرام 5 گرام یہی ہوتا ہے، تو 4 گرام 5 گرام چاندی کا جو بھی قیمت ہے وہ قیمت آپ کو صدقہ کرنا ہے، ایک بات۔
दूसरी जैसे बात सदका करना तो जो हम नाजरीन जो देखने वाले हैं उनको समझ नहीं आएगा सदका क्या चीज़ है, ठीक है। हाँ। तो खुल के बताइए, सदका यानी गरीबों पे बांटना हाँ, है, सदका- मदरसों में बांटना है, हाँ। यतीमों में खर्च करना है। जी जी, सदका ये हमारे दीन का एक टर्म है। जी इसको हम ये जो हम अपने माल का सदका निकालते हैं उसको हम गरीबों को दे सकते हैं, मदरसे में अगर मुस्तहिक बच्चे हैं उनको दे सकते हैं। बल्कि सदक़े के बारे में अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया वो ये है कि सबसे पहले आपके करीबी रिश्तेदारों में अगर कोई मुस्तहिक है आप उनको याद रखें। अपने रिश्तेदार या अपने पास पड़ोस में जो लोग भी मुस्तहिक हैं पहले उनको देखना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छा, ये मुफ्ती इमरान साहब हैं और एक और मौलाना साहब बैठे हुए हैं, इससे भी बात कर लेते हैं। हाजी साहब, हाँ हाजी साहब हैं ये खानदान वाले जी। हम जो इन खानदान से जब सबसे पहले जो हज किए हैं, है ना, वो ये अरशद साहब हैं, जो मदरसा भी इनका चलता है ना। तो ये जो अकीका है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं हाजी अरशद अयूब, मैं एक समाज सेवी पॉलिटिकल भी हूँ। अब पहला नंबर है कि आपकी चैनल वाले को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो हमारे प्रखंड के नायब सदर अंजुम खान जो हमारा छोटा भाई है, उनकी बड़ी बेटी मुस्कान नाम है, उनका दामाद बिलाल खान जी का जो 15 ससुराल होगा, ये नैयर कायकाड़ में हो रहा है, हकीका एंड कुरान खानी। इसमें तमाम उलमा यहाँ पर मौजूद हैं। और आपने जो सवाल किया कि हकीका और कुरान खानी मेरे खानदान के संबंध में, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे सैयद रमजान हुसैन जो थे वो बहुत बड़े बुजुर्ग दीन थे और उनकी किताब आज भी हमारे पास है, छपी हुई 250 बरस उस किताब 30 पारा का उनके हाथों का लिखा हुआ है। और हम लोग एक तरह से काठी टाड़ में जो हम लोग आए हैं, छोटनागपुर महाराज जो उदयनाथ प्रताप साहब थे, उनके मेरे परदादा सैयद रमजान हुसैन खलसावा थे। उनकी खाना बनाए हुए हमारे छोटनागपुर के महाराजा उदयनाथ प्रताप साहब खाना खाया करते थे। आज हम लोग काठी टाड़ में उन्हीं का वंशज है, उन्हीं का दिया हुआ है। और आज का प्रोग्राम जो है, उस प्रोग्राम हमारे छोटा भाई जो अंजुम खान एक आर्मी रहा है, इन्होंने एक आर्मी देश को सेवा करके भी आया है और इन्होंने अलग देश की लड़ाई में अपनी नौकरी में थे उस समय लड़ के आया। इनकी भी आज पूरे प्रखंड में बोलबाला है। समाज सेवी इतनी है कि इन्होंने अपना पैसा को भी, वेतन जो मिलता है पेंशन, उनको भी इन्होंने लगा देता है। साथ साथ मेरे अब्बा का नाम जो लियाजत मदरसा है, वो मदरसा हमारे नौसाद साहब जो हैं और हमारे मुफ्ती साहब हैं, मदर साहब हैं और इमरान साहब हैं, ये लोग सरपरस्त लोग हैं, संरक्षक लोग हैं। और मैं चाहता हूँ दिन की बात हर घर पर जाए। मदरसा आपका निगरानी में चलता है? मैं मदरसा मेरी पर्सनल है, मदरसा मेरी पर्सनल है, किसी का प्रॉपर्टी नहीं हो। मदरसा को मैंने अपने अब्बा इलियाजात के नाम पे, मैं वक्त की बात नहीं है, मदरसा मैंने इलियाजात के नाम पे चलवा रहा हूँ। और इलियाजात का मदरसा इसलिए मैं चलवा रहा हूँ कि सबसे पहले अल्लाह ने हमको नवाजा है। मैं अरशद अयूब हूँ, मेरी अहलिया भी यहाँ जिला परिषद लोगों ने बनाया, तमाम समुदाय के लोग। इसलिए आज हमको पहले मेरा दिन है, उसके बाद ही दुनिया है। अच्छा, ये बताइए हाजी साहब, आपके मदरसे में कितने स्टाफ हैं? हमारा मदरसा का स्टाफ, देखिए हम सदाबहार आदमी हैं। अरशद अयूब, हमारा मदरसा का नौसाद साहब जानेंगे कि कितने एम्प्लॉय हैं, स्टाफ है, कितने बच्चे हैं, क्या मीनू खाना है। पर मैं नजर रखता हूँ, एक मिनट, मैं नजर रखता हूँ, तुलना मैं करता हूँ हमारे पैगंबर अल्लाह के रसूल जिस तरह देख रेख करते थे अपने उम्मत को, जिस तरह मैं मदरसा को भी, अपने बच्चों को, मैं कभी कभी नौसाद साहब से फोन में बात कर लेता हूँ कि बच्चे खाना पीना ठीक है ना, ये कहते हैं सब सही। चलिए, बहुत अच्छा, मदरसा अपने निगरानी में चला रहे हैं और इनसे भी एक मिनट बात कर लेते हैं। ये इमाम साहब हैं, कौन सी मस्जिद के इमाम साहब हैं आप? मेरा नाम कारियाल मोहम्मद हुआ और इस वक्त अभी जमीयत उलमा हिंद का रातू प्रखंड का जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया है। और जमीयत उलमा हिंद पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी तंजीम है जिसका अभी चुनाव हुआ और जिसकी जिम्मेदारी हमें सेक्रेटरी के तौर पर दिया गया है। और इंशाअल्लाह उस तंजीम के ज़रिए पूरे रातू प्रखंड ही नहीं, पूरे आल झारखंड में जो आज जमीयत को दोबारा अभी चुनाव हुआ
और चुनाव के बाद दोबारा जो है उसके ज़रिए जहाँ पर भी दीन का मामला हो और जहाँ पर भी समाजी और आपसी मोहब्बत और आपसी इत्तेफाक और इत्तेहाद का मामला हो, उसमें इंशाअल्लाह हम शामिल हाल रहेंगे। और इसी निस्बत पर आज का ये दावत जो है, क्योंकि मौलाना इमरान साहब ने बहुत कम वक्तों में इसकी तफसीली बताई है। हमारे अंजुम साहब के लड़की का जो है उसी का ताल्लुक से आज का उसका पोता का नाती नवासा, सुभान अल्लाह, नवासा है। और नवासा का निस्बत क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों से हम याद दहानी करके अपनी याद दहानी को ताज़ा रखना चाहिए। पर अंजुम साहब ने आज उसी के ताल्लुक से, अकीका के ताल्लुक से लोगों को जोड़े ताकि दुआ भी हो जाए और लोगों से मुलाकात भी हो जाए। और अंजुम खान साहब जो है एक समाजी एतबार से पूरे प्रखंड में जब से जो है इंडिया गवर्नमेंट की सर्विस पूरा करके आने के बाद समाज में हर जगह पर ये आते जाते रहते हैं। जहाँ पर भी कौम व मिल्लत के लिए और जहाँ पर इंसानियत और फलाह और बहबूदी की बात आती है वो हमेशा पेश रहते हैं। उनके लिए यहाँ समाजी एतबार से हर एक लोग उनकी सराहना करते हैं और हम भी सराहना करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस बेहतरीन सोच के साथ उनकी इस बेहतरीन इरादे को और पाए तकमील तक पहुँचाए। हमारे जसीम साहब भी बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज का निस्बत में उस लड़के को और इस घर को तमाम बलियात से हिफाजत फरमा कर और जो मकसद है उसमें कामयाबी अता करे। ये हमारे जसीम भाई हैं जो यहाँ आए हुए हैं अफ्रीका प्रोग्राम में, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल को आपको मुबारकबाद देता हूँ। आज हम लोग बहुत ही खुशी के मौके पे रातों प्रखंड अंजुमन इस्लामिया के नायब सदर जनाब अंजुम खान साहब के घर में हम लोग तशरीफ़ लाए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इनके नवासे के आज अकीका है, जो कि इस्लाम के अंदर में कहा गया है कि अकीका करना सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसमें ये हम लोग उलमाए किराम से सुने हैं कि अकीका करने से बच्चों को अल्लाह की हिफाजत में आता है, यानी सुरक्षा में। तो मैं जसीम अंसारी और हमारे बहुत भाई अरशद अयूब साहब, अंजुम भाई साहब, ये हम लोग के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में जो भी मामला होता है इलाके के लोग को बुलाया जाता है, सम्मान दिया जाता है और हर वक्त इन लोग सम्मान देने का काम किया है। और हम लोग अभी दुआ भी किए कि अल्लाह ताला इनके पूर्वजों को, पूरा ख़ानदानों को अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और जो दुनिया में हयात से हैं अल्लाह ताला उनको दिन दुनी रात चौगनी अता फरमाए। यही हम लोग दुआ करते हैं। खुदा। और जो प्रोग्राम को सजाया गया है वो ये रहे अंजुम भाई जो इस प्रखंड के नायब सदर हुए और गांव के भी सेक्रेटरी के सदर हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये हमेशा पब्लिकों की सेवा करते रहते हैं और देश के लिए, ये आर्मी में जब थे तो ये देश के लिए भी हिफाजत के लिए हमेशा खड़े थे। तो आज इसी यही प्रोग्राम रखा गया। इनसे भी बात कर लेते हैं कि आज उलमा को बुलाए हैं और बच्चों को भी बुलाए हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका जिया चैनल का शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम आए। और सबसे जो पूरे उलमा और पूरे गार्जियन जो पूरे प्रखंड से आए सबको मेरे तरफ से सलाम। और जो भाई नहीं आए उनको भी चलिए फिर हम लोग चैनल के माध्यम से बताएंगे। और हम यही कहना चाहते हैं कि सब अपने एक दूसरे को जो भी प्रोग्राम हो बुलाएं और खाएं और एक दूसरे को दुख सुख में बांटें और एक दूसरे से साथ रहें, एक दूसरे को साथ मिले, एक दूसरे को तनकीद ना करें और आपस में मिल कर रहें, एक बन के रहें। और जितने भी हमारे उलमा आए, अख्तर मौलाना जान मोहम्मद जसीम भैया और हमारे साले साहब मुफ्ती इमरान साहब जो हमारे हम सबका हम लोग का गार्जियन है और इल्मा जो उनका चलाते हैं, उनका शुक्रिया। हमारे सबरे साहब मोमिन साहब आए, सबको शुक्रिया मेरे तरफ से। और हमारे फजूल साहब हाजी साहब भी आए, उनको भी शुक्रिया। चलिए सब आए, सबका शुक्रिया। और मेरे जो मोहम्मद हादी भाई है वो थोड़ा सा वो आए, चलिए ठीक है, अल्लाह ताला का है। और फिर मिलेंगे। सबको अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय जवान जय किसान।
सलाम अलैकुम। ये बहुत अच्छा ये प्रोग्राम रखा गया है और उलमा की जो प्रोग्राम रखा जाता है इसमें फरिश्ते आते हैं और ये भी अल्लाह पाक ने जब ये कहते हैं कि कहाँ गए थे तो वो बोलते हैं कि उलमा की मजलिस जो लगा हुआ था और बच्चों की जो प्रोग्राम लगा गया था उसमें हम गए थे। अल्लाह पाक जानते हैं फिर भी ये सवाल पूछते हैं फरिश्तों से। ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रखा गया है, ये अंजुम भाई ने रखे। जय हिंद, जय झारखंड। चलिए।